कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाई। माखी चंदन पर हरै, जहाँ बेगंध तहाँ जाए। कबीर वैद मुआ जोगी मुआ, मुआ सब संसार। एक कबीरा नाम हुआ, जेह नाही रोगनहार। कबीर राम न ध्यायो, मोटी लागी खोर। काया हांडी काठ की, नाव चलै बहोर। जुगो जुग टल हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे पालक, ज्ञान दे गमी भंडार, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ हजूर दी बाणी दी विचार नाल जुड़न वास्ते मन बिरतियां इकागर करिए। गुरु बख्शी फतेह साझी करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी के पावन श्लोकां की विचार चल रही है। अज जिन्हां श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है, पहले श्लोक विच कबीर साहब जी कृपा करते हैं ते समझा रहे हैं। कबीर पापी भगत ना भावई, हर पूजा ना सुहाए। कहने लगे भी जिहड़ा पापी व्यक्ति है, विकार करने वाला है, खोटी मत वाला है, भैड़े विचारां वाला है, उन्होंने परमात्मा की भगती चंगी नहीं लगती। उन्होंने हरि प्रभु मालिक की हो रही सिफत सलाह पूजा ये भी चंगी नहीं लगती, ये भी उन्होंने सुख देने वाली प्रतीत नहीं होती। उहदे अंदर का हाल जिहड़ा है विकारां की गंदगी दे नाल भरिया होया, अंदर मैल वधी हुई है, जिदे कारण करके रबी भगती, रबी बंदगी, सिमरन, सेवा, सतसंगत ये चंगा नहीं लगता। वो आखदा भी छेती खत्म हो जाए, छेती बंद हो जाए। उदाहरण के तौर पर गल समझिए, जिवें किसी मनुख नूं बुखार होवे ते अक्सर उहदे अपने मूँह का स्वाद वखरा हो जाता है, ते कई बार ऐसा भी होंदा है भी वो कोई मिठी चीज़ खा रहा होवे ते उहनूं उहदा कोई स्वाद नहीं आउंदा जां उहनूं कौड़ी लगदी है। पर उस वस्तु का सुभाव ते जो जे मिठा है तो मिठा ही रहेगा,
ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋ ਲਈ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਵਿਚਾਰ, ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਸ ਮੱਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਹਾਂ ਬੇਗੰਧ ਤਾਂ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਖੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो पापी व्यक्ति, चलाकियां करने वाला, अहंकारी व्यक्ति, वो भी सत संगत नूं छड्ड के, गुरु दा दरबार छड्ड करके, सेवा छड्ड करके विकारी मनुखां दी संगत विच बैठना ज़्यादा पसंद करता है। सत संगत विच 5 ਤੋਂ 10 मिनट का समा भी नहीं बैठेगा, ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮੱਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿਗੰਧ ਉੱਤੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਧ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਠ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੱਖੀ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਭਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾਵੋ, ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਮੂਆ, ਰੋਗੀ ਮੂਆ, ਮੂਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਹੁਆ, ਜਿਹ ਨਾਹੀ ਰੋਵਣ ਹਾਰ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੁਆਜੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਬਣ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो कबीर साहब जी आखते ने सुचेत हो जावो। सरीरक तौर ते हर एक व्यक्ति ने मरना है, मौत होनी ही है, पर शरीरक मौत मरण तो पहला कोई व्यक्ति आत्मक मौते ना मर जावे, सुचेत हो जावे, जीवन कर्म अपना साध लवे, गंभीर होवे, अपने जीवन के प्रति चेता रखे कि मनुखा जीवन किस वास्ते मिलिया ते किवें इस मिले हुए मनुखा जीवन के स्वार्थ नूं मनोरथ नूं पूरियां करना है, किवें मालिक के घर विच प्रवान होना है। इस सोच इस विचार प्रति गंभीर हो जावे, क्योंकि कबीर साहब जी नाल दे श्लोक विच फिर इस गल नूं समझाते ने। कबीर राम ना ध्यायो मोटी लागी खोर। कहने कि मनुखा जीवन प्राप्त करके व्यक्ति रब का सिमरन नहीं कर रहा, जिदे कारण करके विकारां दी मोटी परत इहदे हिरदे अंदर इहदे मन अंदर चढ़ी जा रही है, विकारां दी मैल इहदे अंदर चढ़ी जा रही है, विषयां विकारां दे विच गलताड़ हुंदा जा रहा है, आत्मिक जीवन की पूंजी बर्बाद करी जा रहा है, रब नूं चेते नहीं करता, सिमरन बंदगी विच जुड़दा नहीं है। ते कबीर साहब जी आखदे ने भाई चेता रख इस गल नूं, ये शरीर मनुखा जीवन वार वार मिलने वाला नहीं है। जे तू सोचें भी हुण भोग पदार्थ जिहड़े ने उन्हां नूं भोग लवां, ऐश दी जिंदगी बतीत कर लवां, जो मन आउंदा है मन मर्जी नाल ओह करां, ते फिर किते नाम जप लवांगा। ते कबीर साहब जी आखदे ने तेरे मन का यह भुलेखा है, इस भुलेखे नूं दूर कर ते एक गल चेता रख पक्के तौर ते कि यह मनुखा जीवन वार वार दोबारा दोबारा मिलने वाला नहीं है। बाणी विच बहुत थावां ते इस प्रति गल नूं चंगी तरह समझाया गया है। कबीर साहब दा ही अपना श्लोक भी है जिहदे विच उन्होंने जिक्र किया है कि जिवें कोई पक्या होया फल टाहनी तो टुट करके हेठां डिग पैंदा है ते बहु ना लागै, डारे द्वारा उस टाहनी नाल उस डाली नाल जुड़दा नहीं है। मनुखा जीवन भी कुछ इस तरह का है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसकी कदर, इसकी कीमत, इसकी अहमियत नूं समझ ते मनुखा जीवन का जो स्वार्थ है, जो मनोरथ है, उन्होंने पूरियां करने वास्ते यतनशील हो। गुरु अर्जन साहब जी रोज सानू सुचेत करते हैं ते प्रेरणा भी देंदे ने, आखदे ने सरंजाम लाग भवजल तरन गए। इस संसार समुंदर नूं पार लंघण वास्ते इंतजाम विच लग, कोई यतन कर, कोई हीला वसीला बना, नहीं तो मनुखा जीवन का कीमती समा तेरा जिहड़ा है ये व्यर्थ जा रहा है। माया दे भोगां दे रंग चोज तमाशियां विच पै करके तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है, समा बर्बाद होई जा रहा है। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। माया दे रंग, माया दे प्रेम विच पै करके तेरा कीमती मनुखा जीवन का समा अजाई जा रहा है। सुचेत हो जा।
तो कबीर साहब जी ने भी अपने इस तीजे श्लोक में उदाहरण इसे ढंग की दी है भी मनुखा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। पंक्ति है, उदाहरण है, काया हांडी काठ की ना हो चरै बहोर। कहणगे काया ये शरीर लकड़ की हांडी की तरह है, लकड़ का भांडा है जिहड़ा इक्को वारी अग ते रखिया जाएगा, दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। काया हांडी काठ की ना उचरै बहोर, इनू दूजी बार नहीं चढ़ाया जा सकता। तो मनुखा जीवन का भी ये समा चेता रखना, ये दोबारा दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो तां करके कबीर साहब जी इस गल नूं अज समझा रहे हैं कि जो हुण समा मिलिया होया है, इहदी कदर इहदी कीमत नूं समझ, सतसंगत विच आ, गुरु दे चरनां विच बैठ, तेन मनुखा जीवन की कदर चेते आ जाए। तो गुरु मेहर करे अज इन 3 श्लोकां की विचार असीं सांझी कीती है, जिहदे विच भगत कबीर साहब जी ने इसे गल नूं दर्शाया है, बख्शिश कीती है, मेहर कीती है ते समझा रहे हैं कि असल अंदर जिहड़ा पापी व्यक्ति है, जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे हिरदे अंदर सत्कार नहीं, वो व्यक्ति जिहड़ा है सतसंगत नूं छड्ड करके विकारियां दी संगत में जा करके वधेरे तौर पर बैठता है। सतसंगत विच बैठना उसनूं पसंद नहीं है, तो विकारां दे अड्डियां ते जा करके भावें घंटिया बदी बैठा रहे, उन्होंने इस गल नाल फर्क नहीं पैंदा कि मनुखा जीवन का कीमती समा बर्बाद हो रहा है। तो गुरु मेहर करे सतसंगत विच आ करके असीं इस गल नूं, इस कदर नूं समझ आइए। समय की समाप्ति है, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।